من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. I warmly welcome you all in today's one-day training workshop, AI meets agriculture, a pathway to carbon neutral villages. It's a pleasure to see such a diverse group of faculty members, researchers, and students gather here to explore how AI and sustainability can shape the future of agriculture. I want to introduce about HOPO Canada. HOPO Canada non-profit organization has been working closely with SAU Tadojam since January 2024. ये जो वर्कशॉप है ये भी उसी का ही एक पार्ट है कि AI जो आजकल जितने भी बच्चे या बच्चियां हैं हमारी वो सुन रहे हैं कि AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, तो उसको हम हुको वालों के ताउन से और मैं नसीर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक आइडिया अपलोड किया और विद इन शार्ट पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी टीम थी उसने उसको बाय तकमील तक पहुँचाया। Assalamualaikum everyone. We'll be talking about voice first digital interfaces for emerging markets, which is Pakistan, India, Bangladesh, and lots of other countries over here. But our focus is on Pakistan right now. हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो वन ऑफ द ग्रैंड चैलेंज है दुनिया का, ग्लोबल चैलेंज है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट। Soil quality अगर आपको predict करनी है, right, उसके लिए गंदा आप बना रहे हैं, वो don't try to make a model. लेकिन अगर आप खुद soil quality predict करने का assess करने की कोशिश करने के लिए बिगोली थी, अच्छी थी, तो किस तरह की डाटा आपको चाहिए होगी? pH of the soil. pH of a soil is one thing. Exactly, one more thing. And then you can use lots of different things. उसके टेक्सचर में आ जाता है, जहाँ पे आप pH लेवल में आ जाता है, उसका ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, उसके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम लेवल आ जाते हैं। एग्जैक्टली सारी चीजें यूज करते हुए ये आप असेस करते हैं कि सॉइल की क्वालिटी क्या है। Well, let's look at an example, farming related, for what data is for AI. So we can take a goal, making a soil quality prediction algorithm. So over here we have a bunch of soil qualities. So we can think of these as features, which can be like physical properties like texture, depth, drainage, pH level, organic matter, nitrogen and phosphorus and potassium. All these different things are, you can think of them as different features that you use if you were to do a soil quality sample yourself. So if you want the computer to be able to predict, you need to give it to data to say, okay, for these specific properties, the label is
the soil quality is bad, or it's good, or it's really good, and whatever the different things means for your specific machine learning problem. But another thing we could do is we could also visually look at if the soil is poor or if the soil is good. And the way to do that is you could supply your entire picture to a model as well. And this could be a feature too, where you can supply the picture and the label, good soil, bad soil, and stuff like that. And the model can automatically learn that this pattern inside a picture means bad soil, and this pattern, darker, maybe brown color, means good soil. So if you were to visualize what all of this data looks like, you can see it would look something like this, where you have your different features. Again, there could be a lot more features, so this is just an example. And then you have your quality of your labels, what we call them. So you could take this, select a machine learning algorithm, and then you could give it this data, and it would automatically learn to predict the right quality metric over time. सबसे पहले ये समझना है कि इसकी अवेयरनेस जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को, फार्मर्स को, सिटीजन्स को, स्कॉलर्स को, कॉर्पोरेट्स को, सबको, एवरीवन, किंडरगार्टन के स्टूडेंट से लेके पीएचडी तक के स्टूडेंट तक, हमारे आम फार्मर से लेके मल्टी बिलियन कॉर्पोरेट के सीईओ तक, सबको एजुकेट होना है इन द ग्लोबल वार्मिंग। आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये एक इतनी बड़ी हकीकत है कि आप मजबूर हैं इसके बारे में सोचना। छोटा सा लगता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया में जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो गोल ही होता है कि आप एक चीज बनाओ और वो मिलियंस ऑफ लोग इस्तेमाल करें। तो something as simple as bill payments is used by 10,000 companies that need your processing probably millions of transactions. जब आप 1 मिलियन ट्रांजैक्शन, 2 मिलियन ट्रांजैक्शन एक दिन में प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होते हैं they need to be very optimized, very resilient, ताकि जब आप एक्सपीरियंस करें, जब आप किसी को पैसे भेजते हैं, आपको चाहिए कि वो पैसे एकदम से जाएं और पहुंच जाएं, या तो कटें या तो ना कटें, दोनों में मिक्स नहीं होना चाहिए। तो वो सिस्टम को क्लियर करने के लिए इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, उसके लिए थोड़ा ताज़ा बता रहा हूँ। सिंजेंटा एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है, पूरी दुनिया में काम कर रही है, और इस वक्त कोई 120 मुमालिक से ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वहाँ पर हमारे फुटप्रिंट्स हैं, और 48,000 एम्प्लॉइज़ के साथ ये दुनिया भर में काम कर रही है। तो हमारे दुनिया में कोई 4 पिलर्स हैं, जिसमें आगरा प्रोटेक्शन पर हम काम कर रहे हैं, सीड्स, हाइब्रिड सीड्स पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर गार्डन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है, उस पर काम कर रहे हैं। और कपास में जवाबी सुंडी का हमला है, ये जो घाटा को वाइट पर भी ये बताना शुरू कर देगा। उसे 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। नंबर 2, MPO 150 GC, उसे 160 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। स्प्रे और हार्वेस्ट के दरमियान 20 दिन का फासला रखें। नंबर 3, पोलिट्रिन C 440 EC, उसे 500 से 600 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। स्प्रे और हार्वेस्ट के दरमियान 14 दिन का फासला रखें। मेन पॉइंट we are trying to communicate with you. आप लोगों ने ये समझना है कि ये जो इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आप लोगों का इसमें कैरियर है, वो क्या हमारा टारगेट जो है अपलिफ्ट का, वो है 42%। 80 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के, तो इनका टारगेट है उनको वो नॉलेज कैसे पहुँचाया जाए, दैट इज थर्ड डिमेंशन, ईजियर वे, और उसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये 3 डिफरेंट डायमेंशन हैं, तो इनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा होना है। दैट्स व्हाई वी आर हियर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ओके लेट्स फोकस एज ए हुपो। हम आपकी क्या जो वीडियो है फॉर एग्जांपल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर हम एक कल्चर क्रिएट करें आपस में, एक दूसरे सवाल करें, दूसरों को जवाब दें, आपस में भी, एक्सपर्ट भी, और उसको आगे लेके चलें। तो जब आप ये काम कर रहे हैं, तो हम आपको साथ साथ क्या इशू कर रहे हैं,
कार्बन अवेयरनेस टोकन, ठीक है। तो वो कार्बन अवेयरनेस टोकन जब आप इकट्ठे कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आप एक खास तरीके से आपकी एजुकेशन में इजाफा हो रहा है। सबके लिए वो डिफरेंट होगा। पीएचडी के स्टूडेंट का क्विज डिफरेंट होगा, वीडियोस डिफरेंट होंगी, सर्टिफिकेशन डिफरेंट होंगी। जो स्टूडेंट है मे बी फर्स्ट ईयर का, उसके डिफरेंट होगी। तो एवरीबॉडी हैज़ देयर रोल टू प्ले। तो उसके मुताबिक वो उसमें अपनी एक्टिविटी में जाएगा और उसके वो पॉइंट्स जो हैं कार्बन अवेयरनेस टोकन वो जो है उसको करना शुरू कर कलेक्ट करना शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को आज हम लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर मंजूर साहब को दावत देता हूँ कि आके इसकी इनॉग्रेशन का जो है वो बटन दबाएं। एंड एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वसीर साहब का, नदीम साहब का, और मेरे जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर तालपुर साहब और डॉक्टर भाई साहब का। तो और होपो कनाडा का कि जिसने साइलेज के प्रोजेक्ट के लिए जो है वो हमें फिनांस भी किया। और उसके बाद जो एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे बंदा जाकर रिसर्च करता है, अपना जो सारी उसकी फाइंडिंग होती है उसकी जो है वो उन्होंने हमें सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की। इन पर्टिकुलर कैच 22 में है यहाँ का जो फुटप्रिंट है लाइवस्टॉक का एज कम्पेयर टू पंजाब, एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत कम। मैं अपनी जर्नी बताते चलूँ कि मैंने इस होपो कनाडा ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन जो है। मैं होपो कनाडा ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर पर्सनली प्रोजेक्ट दिया गया था। उसमें मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मेरे प्रोजेक्ट का नाम था माई मैप नोरिशिंग कम्युनिटीज एंड प्लेनेट। तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट था, अब मेरा कंटिन्यूस पर काम। स्टूडेंट अगर समझते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो वर्कशॉप एआई इंटेलिजेंस पे एग्रीकल्चर पे है उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं। और आपके इस एंड ऑफ द मोमेंट इस प्रोग्राम में आप ये समझ रहे हैं कि इसमें आप कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो हम सब होपो के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करते हैं और आप एक डॉक्यूमेंट की शेप में वो प्रपोजल लिख के अपने आइडियाज को एक प्रिंट की शेप में लाके हमसे शेयर कर सकते हैं। और एज अ मिडिल मैन यहाँ पे समझे एज अ ब्रिज हम आपका मैसेज, आपका प्रपोजल होपो के साथ डिस्कस